Good morning, students. I hope you are safe at your home. Okay, now we will start chapter number 18th, local self-government. Okay, this is the class for 4th class, for the social science class. Okay, we will start chapter number 18th, local self-government. First of all, students, India is very huge country. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाय वन गवर्नमेंट एट अ टाइम टू होल कंट्री. पूरी कंट्री को कंट्रोल करना एक टाइम पे किसी एक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है. सो बिकॉज देयर इज वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, देयर आर सो मेनी टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट possible for the one government to look after the all the needs of the villagers of the cities. Okay, so therefore the government is divided into three parts, means the Indian government has three levels. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट looks after the important matters like finance, defense, international affairs. Okay, and at the state level we have the state governments. For example, कैप्टन गवर्नमेंट, ये मीन्स हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, ठीक है, केरला गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है. दीज आर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द लॉ, ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट. सो and third level, that is local self government. Third level is local self government, means like gram panchayat, municipalities, municipal corporation, municipal committee. These are the local governments that look after the needs of the needs at the local levels, that deals with the problems at the local level. So in this class we will study about the local self government. So there are the two levels of the there are two levels of the local self governments in India: rural and urban. Rural and urban. Rural means villages. ठीक है. At the village level there is gram panchayat. There is gram panchayat, and at the urban level there is municipality. There is municipality. Okay. So we will learn about these two levels of the local self government in this chapter. Clear? So Gram Panchayat. What is Gram Panchayat? Gram Panchayat is a group of people that is elected by the people of the village. Local self government में Gram Panchayat आगे आती है, that runs the village. Okay, तो local Gram Panchayat is a group of people that runs the village and is elected by the people by voting of that village. तो पंच, number one is पंच. There are some words that you should understand. Okay, पंच क्या होता है? What is पंच? Elected member of the ग्राम पंचायत is called पंच, जिसको हम आजकल मेंबर बोलते हैं. ठीक है, and elected member of ग्राम पंचायत is called ग्राम पंचायत. तो पंच का मीनिंग है 5. पंच का मीनिंग वैसे 5 है. ठीक है, कि पहले जो जमाना हुआ करता था, पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत में सिर्फ 5 मेंबर हुआ करते थे, जो एज में सबसे बड़े हुआ करते थे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हुआ करते थे. लेकिन आजकल तो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो यहाँ पे लोग इलेक्ट किए जाते हैं बाय वोटिंग. ठीक है, तो पंच का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर मीनिंग 5 है, मीन्स 5 मेंबर्स हुआ करते थे पहले ग्राम पंचायत में, बट आजकल इसका मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. क्लियर? तो कौन चूज करता है गवर्नमेंट को? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत सरपंच. ये सरपंच और प्रधान इज कॉल्ड प्रधान और सरपंच, दैट इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. ठीक है, तो हु कैन वोट टू चूज ग्राम पंचायत? ठीक है, कौन वोट करता है ग्राम पंचायत को चूज करने के लिए? अ पर्सन हु इज 18 years old or above of the 18 years that can vote, that can choose the members of gram panchayat, that can choose the members of gram panchayat. And so but nowadays there are so many members in the ग्राम पंचायत. फॉर एग्जाम्पल 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. क्लियर? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंच का मतलब है
इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। हेड कौन है? सरपंच होता है, जिसे प्रधान भी बोलते हैं। ये कौन चूज करता है? ऐसे पर्सन जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं या 18 ईयर्स के हैं, वो वोट डालकर उन्हें चूज करते हैं। ठीक है, ग्राम विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। देन हम अर्बन एरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? काम क्या करती है ग्राम पंचायत? काम क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिनेस ऑफ द विलेज, सफाई की। सबसे पहले सफाई का ध्यान रखा जाता है गांव की का। ठीक है, क्लीनिनेस ऑफ द विलेज, गांव को साफ सुथरा रखना। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। देन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू द पीपल। क्लियर? देन प्रोवाइड एजुकेशन, प्रोवाइड एजुकेशन। टू प्रोवाइड एजुकेशन, तो ग्राम पंचायत सेट अप द स्कूल्स, सेट अप द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, एजुकेशन देने के लिए बच्चों को 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत स्कूल सेटअप करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाती है। देन लोगों की हेल्थ के लिए डिस्पेंसरीज खोलती है। ठीक है, डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरी क्या होता है? पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर होता है, जहाँ पे लोगों की हेल्थ के इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। कौन कौन से फंक्शंस हैं? क्लीनिनेस ऑफ द विलेज, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, रिपेयर एंड मेंटेन रोड्स एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। ठीक है, नए रोड्स बनवाना और पुरानों की मरम्मत करवाना। ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। तो दीज आर द फंक्शंस। नंबर 1, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, प्रोवाइड स्कूल्स फॉर द एजुकेशन, provide drinking water and provide healthcare centers, provide and to build healthcare centers for the service of the people. Provide street lighting, provide schools for the education of children, provide medical aids. Yes. Then provide good quality seeds and manures to the farmers. ये किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिलवाना, उनको खाद दिलवानी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। आपके गांव में सोसाइटीज होती है ना, सोसाइटीज होती है, तो वहाँ पे गुड क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं, मन्योर्स मिलते हैं, खाद मिलती है। क्लियर? सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द विलेजर्स, विलेजर्स जो हैं गाँव वाले हैं, उनके बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो उनको डिस्प्यूट सेट करवाना, उनमें सेटलमेंट करवानी, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। नाउ देन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, व्हाट इज म्यूनिसिपैलिटी? म्यूनिसिपैलिटी इज ऑल्सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया। शहरों में जो पंचायत होती हैं, शहरों में जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कमेटी इज फॉर द स्मॉल सिटीज, स्मॉल सिटी जैसे मॉड है आपका, ठीक है, जहाँ पे टाउन्स होते हैं, उनके लिए वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी होती है। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी इज, द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी इज चेयरमैन और प्रेसिडेंट। ग्राम पंचायत का हेड कौन था? सरपंच था, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। क्लियर? तो ग्राम पंचायत भी सेम वैसे काम करती है, लेकिन ये शहरी एरिया के लिए करती है, ग्राम पंचायत पेंडू एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए काम करती है। द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द सिटी। तो ग्राम पंचायत को विलेज के लोग इलेक्ट करते थे और म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल ऑफ सिटीज, शहरों के लोग करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर्स, इलेक्शन जो होती हैं हर 5 साल के बाद होती है। म्यूनिसिपल कमेटी की, ग्राम पंचायत की भी
सिर्फ राज्यसभा को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी इलेक्शन होती है वो 5 ईयर्स के बाद होती है इंडिया में। पीपल हु कैन वोट आर कॉल्ड वोटर्स, जो वोट डालते हैं उन्हें वोटर्स बोला जाता है। एंड यू नो तो दे आर द पर्सन हु इज 18 years old, who is 18 years old or above from it, that can choose the, he or she can choose the members of municipal committee. Here the members who are elected, the members who are elected in municipal committee are called municipal councillors, और उन्हें क्या बोलते हैं, municipal councillors बोलते हैं। and the members of the ग्राम पंचायत are called पंच, members of the municipal committee are called councillors। Next is municipal corporation. Municipal corporation. Municipal corporation is also local self-government that runs the big cities. That runs the big cities that are called municipal corporation. For example, Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, they have municipal corporation because these are the metro cities. These are the very large cities and population is also very large. So that's why there are municipal corporations. And in small cities like Mandi, in town, there are the municipal committees. The head of the municipal corporation is called mayor. The head of the gram panchayat is called sarpanch. The head of the municipal committee is called president or chairman, and the head of the municipal corporation is called mayor. Municipal corporation का head कौन होता है, mayor होता है। ठीक है, ये बड़ी cities के लिए बनी होती है municipal corporation। यस, तो फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी के काम क्या होते हैं? देखो काम सेम ही होते हैं ग्राम पंचायत के भी म्यूनिसिपैलिटी के भी। तो फर्स्ट इज टू कीप द सिटी क्लीन, सिटी को साफ रखना, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। टू सेट अप द हॉस्पिटल्स, टू मेंटेन द रोड्स, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू द 14 years ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई देना, स्टडी देना, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ठीक है, जब अपने घर में किसी की डेथ होती है या बर्थ होता है तो हम उसको रजिस्टर करवाते हैं ना, फिर उसके बाद उसके सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाना, ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। एंड देन इशू द सर्टिफिकेट्स, इशू द डेथ सर्टिफिकेट्स एंड द बर्थ सर्टिफिकेट्स। ये क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में हमें जो ये सब हमें सेंसस के लिए बहुत जरूरी है, सेंसस की जनगणना करने के लिए, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि ये देखना कि प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं कि नहीं। देन इशू राशन कार्ड्स। राशन कार्ड्स आपको पता ही है, जिसपे हम जो गरीब फैमिलीज होती हैं, गरीब कैटेगरीज के लिए फ्री जो है फूड सप्लाई किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही शॉर्ट प्राइसेस पे, बहुत ही कम प्राइसेस पे हम राशन देती है सरकार। तो दैट कार्ड्स आर कॉल्ड राशन कार्ड। ठीक है, तो वो इशू करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। देन प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, बसेस प्रोवाइड करवाना, ट्रेन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, पब्लिक जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है। देन टू सेट अप एंड मेंटेन, so next function of municipality is to set up and maintain public parks, libraries and zoos. So that is also responsibility of the municipality। ये वहाँ पे पब्लिक पार्क होते हैं, गार्डन्स होते हैं शहरों में, उन्हें सेटअप करना, उन्हें बनाना एंड उन्हें मेंटेन करना, उनकी रिपेयर करवाना अगर टूट जाते हैं कहीं से। तो लाइब्रेरीज बनाना, शहर में लाइब्रेरीज बनाना, जूस बनाना जहाँ पे एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। देन सोर्सेज ऑफ मनी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इतने सारे काम कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी ने, ग्राम पंचायत ने, तो वो कहाँ से इतना पैसा लेकर आती है? तो कहाँ से? तो मेन सोर्स ऑफ द मनी ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। यस, टैक्सेस। कौन कौन से टैक्सेस हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, वाटर टैक्स, सेल्स टैक्स। तो ये सब टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट का इनकम सोर्स है।
इनकम सोर्स हैं, तो ये कहाँ से कलेक्ट होते हैं? हमसे। नाउ व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? द मनी दैट इज पेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट। द मनी दैट इज पेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड टैक्स। दैट by payment is called tax. So there are so many taxes that are paid by people to the government. For example, property tax, toll tax, आवाजाही पे मीन्स ट्रांसपोर्ट पे लगता है, टोल टैक्स बोलते हैं उसे, वाटर टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसमें जो टैक्स है सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोप लेने गए हो तो उसमें पहले से ही टैक्स इंक्लूडेड होगा। क्लियर? देन अक्रोई टैक्स, tax that is charged on goods that come from other states, that is called octroi tax. octroi taxes जो हम देखो फॉर एग्जाम्पल हमने हरियाणा से कोई चीज़ मंगवाई है, ठीक है, हरियाणा से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वहाँ से कोई चीज़ आ रही है, तो जब हरियाणा से पंजाब में कोई चीज़ एंट्री करेगी वो, ठीक है, उस पर एक टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड octroi tax.